अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करें. There is a lot of information in P4 section A's, and you can use that plus your economics concepts and knowledge. जल्दी से पढ़ते हैं जी. Threat from large firms. In 2021, one of the largest US technology companies averaged sales of 1.2 billion a day. It took less than 4 seconds to earn 52,000 US dollars, the average American yearly salary. Three of the largest technology companies reported record breaking sales and profits. Five of the largest companies made combined profits of over US dollar 68 billion. I think straight away हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये मोनोपली ओलिगोपली बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड पेपर लगेगा सेक्शन ए. अब उन्होंने कहा जी they were helped by the COVID-19 pandemic that caused a huge increase in online working and shopping. Ability to work and shop online was greatly welcomed by many who were forced to stay at home. Critics, however, worry that if this trend to large firms continues, the future will be controlled by a handful of super rich, super powerful companies. They will dominate economic activity. This is not just bad for the economy, it is bad for the consumers, bad for competition. Also, economic concentration causes unacceptable inequality. One powerful firm tries to prevent workers joining a trade union. Tried to prevent workers joining a trade union. अब मुझे बताएं जी, कंसंट्रेशन, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन. ओलिगोपली के चैप्टर में हमने कंसंट्रेशन रेशो पढ़ा था. कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज कंसंट्रेशन रेशो? ये ऑफन फॉरगॉटन टॉपिक्स हैं. ओके, सुन लें. कॉन्सेंट जी जी जी. शाबाश. Yes, concentration ratio shows how much market share is squeezed into a few firms' hands. Three largest firms concentration ratio भी होती है, 4 firm concentration ratio भी और 5 firm भी. मतलब टॉप की 3-4 फर्म्स का मार्केट शेयर ऊपर, उनकी सेल्स ऊपर, टोटल मार्केट सेल्स नीचे, इनटू 100 हमें पता लग जाता है उनके पास कितना परसेंट मार्केट शेयर है. तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन मीन्स हाउ मच मार्केट शेयर इज स्क्वीज्ड इनटू द हैंड ऑफ फ्यू लार्ज फर्म्स. अच्छा जी, यहीं पे एक और टर्म करवा दूं जी मेरा बेटा. कम, जितनी कम फर्म्स के हाथ में मार्केट शेयर होगा उतनी कंसंट्रेशन रेशो ज्यादा होगी. यस. जैसे परफेक्ट कंपटीशन में जीरो कंसंट्रेशन रेशियो है, सब फर्म्स का सिमिलर मार्केट शेयर. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत थोड़ी. मोनोपोली में 100% कंसंट्रेशन, ओलिगोपोली में हाई कंसंट्रेशन. समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट है. अच्छा, एक और टर्म जो यहीं पे आती है और बच्चे गलत डिफाइन कर देते हैं, जीरो सम गेम. Does somebody know what zero sum game is? इसलिए मैं छोटे नोट्स दोबारा भेज रहा हूं. प्लीज वो माइक्रो मैक्रो के छोटे नोट्स 13 पेज के माइक्रो के और 16 पेज के मैक्रो के, वो तो सारे चैप्टर्स रिवाइज करें ना वहां से. जी मेरे. हाँ, काफी अच्छा अच्छा बता रहे हो. When total benefit in the market is fixed. If one party gains, other party loses. If one firm gains, other firms lose. If producers gain, consumers lose. ये है जीरो सम गेम. अच्छा जी, यहीं पे पूछ लूं, collusion या कार्टेल, इसकी डेफिनेशन किसको आती है? Yes, when some firms form a group together to fix prices and output. Collusion is of two types, tacit and cartel. Tacit is informal, no agreement, which is price leadership. And cartel is formal, there is an agreement between the partners. ठीक हो गया? तो मैंने कहा कुछ टर्म्स आपको रिवाइज करा दूं. नेक्स्ट जी, द ह्यूज कैश, सॉरी, सिटीज हाउएवर, क्रिटिक्स हाउएवर वरी मैंने पढ़ लिया था.
Their huge cash reserves mean इन firms के पास इतने cash अब normal profit के इकट्ठे हुए हैं that they could undercut possible new entrants. नए entrants को वो आने से रोक सकते हैं by reducing prices and prevent competition. Investors will be wary of investing in possible competitors, and new owners would be prepared to sell out to dominant firms rather than try and compete. Investors जो कि इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, दे विल बी टू स्केयर्ड टू इन्वेस्ट इन कंपेटिटर्स ऑफ सच लार्ज फर्म्स. और जो छोटी फर्म्स हैं वो डोमिनेंट को कहेंगे हमें खरीद लो, रादर देन कम्पीटिंग विद यू हम इंडस्ट्री ही छोड़ जाते हैं. Size of the firm gives it political power to fight any official or government intervention. ये बहुत पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, माफिया ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट्स के साथ ये टक्कर लेते हैं. Governments are beginning to be aware of this. The chair of the US body that deals with competition law said that there was a range of potential risks created by the large companies. The government is aware of their ability to avoid paying taxes, and their ability to dominate allows them to expand into markets for similar products. जैसे ये नेस्ले जैसी कंपनीज हैं, डेयरी मार्केट में, फूड मार्केट में, हर चीज़ में घुस जाती हैं, हर किस्म की सिमिलर प्रोडक्ट बनाना शुरू हो जाती हैं, market niches बंद कर देती हैं, टैक्स पे नहीं करती. 10 years ago, a co-founder of one of the large firms said Joseph Schumter, the economist who used the term creative destruction, would be proud. उस इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि ये जो क्रिएटिव आइडियाज़ लेके, यूनिक प्रोडक्ट्स लेके छोटी छोटी फर्म्स आ रही हैं, ये कल को मोनोपलीज बनेंगी और दुनिया के साथ बहुत ज़्यादती करेंगी. It turned out to be true. But now the co founder is not so sure. We went from being pirates to being the Navy. People may love pirates when they're young and small, but nobody likes a Navy that acts like a pirate. Today's technology giants are just like that. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई सवाल डेटा के ऊपर? अब पहला क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड मार्केट स्ट्रक्चर से जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिमिट प्राइसिंग एंड प्रेडिटरी प्राइसिंग. नथिंग इन द डेटा, कुछ है लेकिन डेफिनेशन नहीं है. व्हाट इज लिमिट प्राइसिंग? 2 मार्क्स के लिए. पहले लिमिट बताएं प्लीज. अच्छा, आप उल्टा बता रहे हैं. व्हाट इज लिमिट प्राइसिंग? हाँ, अब बेहतर हो रहा है. Yes, that is the perfect definition. Limit pricing is a strategy to prevent new firms from entering the market. Firms try to earn less or even normal profit, प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर कर लेती हैं, ताकि नई फर्म्स को लगे इस मार्केट में आने का क्या फायदा, देर इज नो प्रॉफिट. समझ आ रहा है? लिमिट प्राइसिंग मीन्स कीपिंग बैरियर्स टू एंट्री, यानी setting the highest possible price that does not attract new firms to enter the industry because they feel there is no real profit in this industry. Therefore, these firms earn normal profit, प्राइस को एवरेज कॉस्ट के पास रखती हैं, टू ट्राई एंड नॉट अट्रैक्ट न्यू फर्म्स. समझ आ गया मेरा बेटा? प्रेडिटरी वो है जो अमीन आप बता रहे थे. प्रेडिटरी प्राइसिंग क्या होती है बच्चों? यस, यस, डंपिंग, वेरी गुड. प्रेडिटरी, alhamdulillah, predatory pricing is when current firms charge such low prices, even at loss, to drive out other firms from the market, trying to reduce the competition. They will बाद में raise the prices to recover these losses and become monopolies. This is anti-competitive. This is illegal. According to competition law, ये illegal है. Limit pricing is okay
लेकिन प्रेडिटरी इलीगल है। बच्चों समझ आ गया या एक बार फिर बता दूं? श्योर मेरा बच्चा, मैं जरा बच्चे देख लूं कौन कौन से हैं और कितने हैं। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, limit pricing is when the firms charge maximum price which does not attract new firms to enter. They make normal profit. एवरेज कॉस्ट के बराबर प्राइस कर देते हैं ताकि नई फर्म्स को प्रॉफिट इतना नजर ही ना आए, उस इंडस्ट्री में वो एंटर ना हो। ठीक है। प्रेडिटरी प्राइसिंग इज जब वो जानबूझ के लॉस करती हैं, बिलो देयर एवरेज कॉस्ट बेचती हैं प्राइस, ताकि करंट फर्म सरवाइव ना कर सकें, एक एक करके मार्केट छोड़ जाएं और बाद में वो मोनोपोली बन के हायर प्राइस करें। ये एंटी कंपेटिटिव है, इलीगल है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन पॉलिसीज। बच्चों समझ आ गया दोनों में फर्क? ओके। अब वो कहता है एक्सप्लेन वेदर देर इज एनी एविडेंस इन द आर्टिकल ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं आपकी आसानी के लिए हाईलाइट कर देता हूं। देखें कहाँ पे आपको लिमिट या प्रेडिटरी का नजर आ रहा है, बल्कि इन दोनों। ओके श्योर। ये आ गया जी। Explain whether there is any evidence in the article of these two types of pricing policy. लिमिट प्राइसिंग और प्रेडिटरी प्राइसिंग कहीं नजर आ रही है आपको आर्टिकल में? अब मैं दोनों पैराग्राफ्स हाईलाइट कर रहा हूं, बताइए जी। Yes, they have huge cash reserves. They could undercut possible new entrants and prevent competition. ये है कौन सी प्राइसिंग? ये लिमिट प्राइसिंग है। और देखें कंपटीशन को रिमूव करने के लिए कुछ नजर आ रहा है आपको? यस। हाँ, न्यू ओनर्स वुड बी प्रिपेयर्ड टू सेल आउट टू डोमिनेंट फर्म्स रादर देन ट्राइंग टू compete। ना इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट नजर आ ही नहीं रहा। तो वो है जी, आई मीन अवॉइड पेइंग टैक्सेस इज नाइदर प्रेडिटरी प्राइसिंग नॉर लिमिट प्राइसिंग। समझ रहे हैं? लिमिट प्राइसिंग टू मच ऑफ अ स्ट्रेच, आई मीन टू मच ऑफ अ स्ट्रेच। नहीं मिलेगा मार्क। साफ साफ उसने लिखा हुआ था कि इतने कैश रिजर्व्स हैं कि वो अंडर कट कर रहे हैं न्यू एंट्रेंट्स को एंड प्रिवेंट कंपटीशन। ये है लिमिट प्राइसिंग। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे कंपेटिटर्स में, वो अपना बिजनेस बेच के जाना चाहेंगे। ये है प्रेडिटरी प्राइसिंग। समझ आ गया मीन? ओके, लेट्स चेक मे बी यूर राइट। ये आ गया जी। मैं तो कहीं और फिर रहा हूँ जी। इज इट द राइट पेपर? या अब देखते हैं। या लिमिट प्राइसिंग एंड प्रेडेटरी प्राइसिंग। Limit pricing is a strategy used by existing suppliers to restrict the entry of new entrants into the market. Existing firm sets a price low enough to prevent new entrants considering it worthwhile to enter a market in which to try and compete. They set price possibly close to average cost so that just normal profit is made. आप even basics अभी explain कर देंगे तो score मिल जाएगा। Predatory pricing, by contrast, is strategy in which is used by one supplier to force another supplier already in the market to leave the market. They set the price below unit cost in short run to drive out competition, then later raise prices to recover those losses. It is considered anti-competitive and is illegal under the anti-competition antitrust laws. Limit pricing, yes. Investors not prepared to invest in new companies. Potential owners prepared to sell to existing large firms. Also, new owners might choose to leave the industry, and this might be described as predatory pricing. समझ आ गया? I mean, taxes का उसने हवाला नहीं दिया।
ओके मेरा बेटा, लेट्स मूव ऑन। ओ बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। असेस थ्री पॉसिबल पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द मैक्रो इकोनॉमी ऑफ द ह्यूज इंक्रीज इन साइज ऑफ फाइव लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज। तसल्ली से तीन मैक्रो इकोनॉमिक एडवांटेजेस सोचो। उससे क्या मैक्रो इकोनॉमिक एडवांटेज आएगा? एम्प्लॉयमेंट, यस, possible rise in employment. These large five companies will, because they're expanding so much, they will need labor. ठीक है, लेबर डिमांड इज डिराइव डिमांड, इनकी डिमांड बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, दे विल हायर मोर लेबर, स्पेशली ट्रेंड स्किल्ड वर्कर्स की बड़ी हायर वेजेस पे जॉब लगेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। और जी, इनकी वजह से क्या हो रहा है? सॉरी, क्या होगा? टैक्स रेवेन्यू मिलेगा जिसको गवर्नमेंट एजुकेशन हेल्थ केयर पे स्पेंड करेगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। ये फर्म्स इन्वेस्ट करेंगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, मल्टीप्लायर, एक्सपोर्ट करेंगी जिससे एक्स माइनस एम सरप्लस में जाता है। आर यू फॉलोइंग? मैक्रो के साथ लिंक करना है आपने। आप थोड़ा सा माइक्रो पे आ रहे हो, इसको मैक्रो पे ले जाओ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से मैक्रो बेस पे क्या फायदा होगा? हाँ, ये अब बताया ना। यस, यूज इट टू लिंक इट विद मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, क्या होगा? डाउटफुल, बट चले मान लेते, मान लेते। हाँ, वो इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, उससे इनफ्लोज इनटू एफडीआईज आएगी। अब हमारे सॉरी फाइनेंशियल अकाउंट आएगी। सॉरी, कम अगेन। हाँ, अप्रिसिएशन, जिससे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। लेट्स हैव अ लुक वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉसिबल इंक्रीजेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन हेल्थ केयर पे लगा रही है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। एनी थ्री विद डेवलपमेंट फॉर ईच वन, 2 मार्क्स ईच, तीन तीन लाइन्स कम अज कम लिखिएगा। ऑल्सो मार्क्स मस्ट बी गेन फॉर रिलेटिव कॉमेंट्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, जैसे उन्होंने अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बोला, मुझे अच्छा लगा, उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम कराओ। Note, must assess the effects on macro. कौन सा? Okay, multiplier is when an injection causes a greater increase in national income than the original injection. क्योंकि इनकम जनरेट होती हैं, वो रीस्पेंड होती हैं, फिर रीस्पेंड होती हैं, कई सीरीज ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एग्जैक्टली वही चीज है, ये डोमिनो इफेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। किसी बच्चे को समझ ना आया हो ये क्वेश्चन, 6 आउट ऑफ 6 का क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। ऑल राइट जी, कीप इट मैक्रो, डोंट गो माइक्रो प्लीज। आर्टिकल सेज द ग्रोथ ऑफ लार्ज फर्म्स इज बैड फॉर कंज्यूमर्स, bad for competition, causes inequality. Consider whether this statement can be supported by the article and by economic theory. अब जी, up to 4 marks, why they are bad for consumers, bad for competition, and cause inequality from your own knowledge and from the article. पहले अपनी नॉलेज से बताएं, लार्ज फर्म्स को बुरा क्यों समझा जाता है, कंज्यूमर्स के लिए, कंपटीशन के लिए और इनइक्वालिटी के लिए जी। एक एक करके करो। पहले बच्चे ने जिसने सबसे पहले बोला था, आप बोलो। लार्ज फर्म्स एक्सप्लॉइट कंज्यूमर हाउ? यस, इसके अलावा कंपटीशन को वो क्यों खराब करती हैं?
लिमिट प्राइसिंग, प्रेडिटरी प्राइसिंग, बैरियर्स टू एंट्री, कंपटीशन कम करती हैं, फर्म्स को ड्राइव आउट करती हैं। जी सॉरी। यस, एब्सोल्युटली। हु आर यू बेटे? आप कहाँ से हैं, कौन से स्कूल से? हदीद, वेरी वेल डन हदीद, सिटी स्कूल, यस यस, वेरी वेल डन। बिल्कुल सही बोला है हदीद ने। दे आर बैड फॉर कंपटीशन बिकॉज दे, मैंने बोला था बैरियर्स टू एंट्री बनाते हैं, इस तरह का काम करते हैं। और हदीद ने आपने फर्दर क्या ऐड किया था? दे कैन बाय आउट द कंपटीशन, जैसे नजर आ रहा है आर्टिकल में भी। तो एज अ रिजल्ट दे आर बैड फॉर कंपटीशन। इनकी वजह से इनइक्वालिटी क्यों बनती है? इन्होंने ट्रेड यूनियंस बनाना मना किया है, उससे इक्वालिटी में कमी होगी। टैक्स देते नहीं हैं, वो गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर सकेगी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे, पॉवर्टी स्कीम्स पे। और इनका 4 सेकंड का प्रॉफिट एवरेज अमेरिकन की सैलरी के बराबर है। सो दे आर एक्सट्रीमली इनएक्विटेबल। वेजेस में भी इनइक्वालिटी करेंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हाई पे करेंगे। 4 मार्क्स तो आप बड़ी आसानी से ले जाएंगे। अब डेटा में कुछ बुरा नहीं, अच्छा नहीं लिखा हुआ है इनके बारे में, सिवाय पहली लाइंस पढ़ें जरा, ये सॉरी, सेकंड पैराग्राफ, इसमें कुछ अच्छा लिखा हुआ है कंज्यूमर के लिए। वर्क फॉर होम की अपॉर्चुनिटीज और शॉप ऑनलाइन की वजह से कंज्यूमर चॉइस बढ़ रही है, उन्हें आसानी मिल रही है, कन्वीनियंस वो इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ। अब इकोनॉमिक थ्योरी बताएं, ये क्यों अच्छी होती हैं? अब अमीन बोले, माइक्रो है। व्हाट डू दे अचीव? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हेंस दे कैन पास लोअर प्राइसेस। नेक्स्ट जी। They are dynamic efficient because they've got such large cash reserves of abnormal profit that they can reinvest them into research and development, reduce the long run average cost. Or G, they are very good in what? Innovation, leading to greater choice. ठीक हो गया। इनइक्वालिटी ये कम नहीं करती बिकॉज नॉर्मली दे डोमिनेट द मार्केट्स। समझ आ गया मेरा बच्चा? अब कंक्लूजन दें, क्या ऑलवेज ये बात होती है? हाँ। तो कंक्लूजन में, हाँ बिल्कुल सही दिया, बिल्कुल सही दिया आपने। गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, किस हद तक गवर्नमेंट वॉच कर रही है? हमेशा बुरी नहीं होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बुरी होंगी। समझ आ गया मेरा बेटा? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? शॉर्ट टर्म इफेक्ट कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, प्रेडेटरी प्राइसिंग वगैरह का। कंपटीशन के लिए बुरा है, और लॉन्ग टर्म कंज्यूमर्स के लिए भी बुरा है, कंपटीशन के लिए भी और इनइक्वालिटी के लिए भी। समझ रहे हैं? अब लेट्स सी व्हाट द मार्क स्कीम वाज एक्सपेक्टिंग। In support, article mentions profit compared with salaries, inequality, restriction on union membership, inequality, avoidance of tax, inequality, expansion into adjacent market. छोटे बिजनेस को निकाल रही हैं। थ्योरी क्या कहती है? ग्रोथ ऑफ फर्म्स कैन लीड टू लेस चॉइस, हायर प्राइसेस, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, हायर प्रॉफिट्स. This is supported by the article and by the theory. It can be detrimental for consumers and detrimental for competition. Monopolies can be formed, small firms forced out of the market. ये जो हदीद ने बातें की थी, assess the statement. Article mentions consumers working, staying at home, and welcoming the service the firms provide. Theory: large firms can also have economies of scale, can reduce prices, can encourage innovation and research, dynamic efficiency. This is not mentioned in the article, but is supported by economic theory. Conclusion statement is therefore not always true. गुड इनफ। बहुत सिंपल पेपर था, और मेरे ख्याल में बड़े आसानी से आप लोग कर सकते थे। अब जी, इज देयर अ क्वेश्चन ऑन एफिशिएंसी, कंज्यूमर बिहेवियर, लेबर मार्केट एंड ऑब्जेक्टिव्स? स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे पास नहीं, लेबर मार्केट का भी है, यस यस यू आर राइट। सो वी हैव बोथ लेबर मार्केट एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी।
पहले वाला क्वेश्चन तो आप लोग अब मेरे ख्याल में इसके माहिर हो चुके होंगे। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ प्रोडक्शन कॉज मार्केट फेलियर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब यहाँ पे ये बात समझिएगा, डायग्राम किसका बनाना है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। इज लाइकली टू असेस द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। बाकी भी बनाएं, 6-7 बनाएं। स्टार्ट कैसे करेंगे? मार्केट फेलियर से। मेरा बेटा आपको एमपीसी एमएससी वाला बनाना होगा। मैं अभी बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। वही जो हम करते हैं नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का, वो इधर बना दो, ठीक है जी। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन वेयर फ्री मार्केट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। एमएससी इज नॉट इक्वल टू एमएसबी। ऑल costs and benefits are not accounted for. Over and under allocation, over and under production, that is it. Negative externalities can be of production and consumption. आप सबको पता है, बता दो, what are negative externalities? Spillover, harmful effects, when social cost is greater than private cost, external cost का exist करना production में या consumption में, ठीक है। Private sector only considers private costs and benefits and ignores external costs and benefits. अब मेरे बच्चों, पहले आप नेगेटिव इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, एलोकेटिव का ये मसला है, दिस इज द केस ऑफ एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी? शाबाश। और इसके तीन क्राइटेरियंस, एम सी इज इक्वल टू पी या ए आर। शाबाश। एम एस सी इज इक्वल टू एम एस बी, टोटल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज्ड। वही डायग्राम, डिमांड एम एस बी, सप्लाई एम एस सी। प्लीज उल्टा लेबल ना कर दीजिएगा बच्चे, बड़ी अफसोस होता है जब ऐसा करते हैं। ये बना के आपके नॉलेज के मार्क्स आराम से आ चुके हैं। मैं तो कहूँगा वही फॉर्मेट रखो। पहले नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज का बनाओ, फिर नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज का बनाओ डायग्राम, डेड वेट लॉस दिखाओ, पूरे मार्क्स लो। अलबत्ता जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे आएंगे तो हमें उसने सिर्फ एक पॉलिसी बोली हुई है। आमतौर पे हम 2-3 पॉलिसीज लेते हैं, इस बार भी 2-3 लेनी है, लेकिन ज़्यादा हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को करना है। तो ये नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, मुझे मेरे बच्चों बताओ लेबल्स क्या हैं? प्राइस कॉस्ट बेनिफिट क्वांटिटी, खाली प्राइस क्वांटिटी भी करें, ठीक है। डिमांड के साथ एमएसपी लिख दीजिएगा, हम एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं देख रहे। सप्लाई के साथ मैं क्या लिखूं? क्या लिखूं? नो मेरा बेटा, एक्सटर्नल कॉस्ट अभी नहीं शामिल। एमपीसी, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट सेक्टर इसलिए तो फेल हो रहा है, वो एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता। ये प्राइस मार्केट, ये क्वांटिटी मार्केट। जब एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड कर लोगे, अगर एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड होती, सप्लाई कर्व S1 पे जाता, एमएससी अब बनता, इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम हो जाता, प्राइस ऑप्टिमम हो जाती, और क्वांटिटी भी ऑप्टिमम। अब आपने 2-3 चीजें हाईलाइट करनी है। ये लिखना है ओवर एलोकेशन या ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। और इधर लिखना है वर्टिकल डिस्टेंस लेके एम ई सी, इसको हाईलाइट करना है। और ये है आपका डेड वेट लॉस। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, अक्सर बच्चों से करवाता हूं। प्राइवेट सेक्टर ओनली कंसिडर्स प्राइवेट कॉस्ट, hence price was PM and resources were over allocated at QM. If external costs were added, supply would have shifted to MSC. Vertical distance between two curves would have been MEC, marginal external cost. Dead weight loss is the area highlighted. यही आपका टोटल एक्सप्लेनेशन है। बच्चों सबको समझ आ गया है या बताएं मुझे प्लीज, आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन हियर। आ रही है?
आप क्या पूछ रहे हैं, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? क्यों शिफ्ट की है? बेटे अगर एक्सटर्नल कॉस्ट ये शामिल करते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता। सोसाइटी की कॉस्ट आर मोर देन बिजनेस कॉस्ट। समझ आया? ये दोबारा बताऊं? एक्सटर्नल कॉस्ट हमने ऐड करके मार्केट फेलियर हाईलाइट किए, खत्म नहीं हुआ, सिर्फ बताया है। अब जी नेगेटिव, हाँ समझ आ गया मेरे बेटे? ओके। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज ये क्या होती हैं? पैसिव स्मोकिंग, ड्राइविंग डीजल एंड पेट्रोल, यस, डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स, यस, लिटरिंग इन द पब्लिक एरियाज, ये सब कुछ आपकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। एग्जाम्पल दीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूं क्रिएट अ फिक्टिशियस बिजनेस, फिक्टिशियस एग्जाम्पल्स। अब डिमांड क्या है मुझे बताएं? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। अलबत्ता सप्लाई हम एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब नहीं देख रहे, ये एमएससी है। इक्विलिब्रियम मार्केट यहां बना, क्वांटिटी और प्राइस मार्केट ये बनी। ऑब्वियसली इट्स ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। सोसाइटी का बेनिफिट स्मोकर से कम है, वो तो बीमार हो रही है उसकी वजह से। सोसाइटी का बेनिफिट डीजल एंड पेट्रोल गाड़ियों चलाने वालों से कम है, उन्हें पोल्यूशन फेस करनी पड़ रही है। सोशल बेनिफिट कम है। क्यों? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट माइनस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, राइट? इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम हो गया, प्राइस नीचे आके ऑप्टिमम, क्वांटिटी ओवर एलोकेशन जो हो रही थी, ओवर कंजम्पशन जो हो रही थी वो ठीक हो गई। अलबत्ता आप नई इक्विलिब्रियम पे करें वर्टिकल डिस्टेंस और ये वाला एरिया कोई लेबल कर दें ए ई ऑप्टिमम ई एम इज द वेलफेयर लॉस। बच्चों समझ आ गए दोनों डायग्राम्स? अब इनडायरेक्ट टैक्स में यही डायग्राम दोबारा बनाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एमएससी के साथ एमपीसी प्लस टैक्स। हम एमईसी के बराबर टैक्स लगाते हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर। एक्सटर्नैलिटीज को इंटरनलाइज करा रहे हैं, ऑप्टिमम लेवल पे ला रहे हैं। क्लियर मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? अब क्योंकि क्वेश्चन इज डायरेक्टली ऑन, सॉरी मैं किधर चला गया, क्वेश्चन इज डायरेक्टली ऑन जस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन मेन उसने बोला है, तो हमें इस पे बहुत एनालिसिस करना है। इसका डायग्राम भी बनाएंगे एमपीसी से एमएससी पे शिफ्ट करके। मुझे बताएं इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों कामयाब होंगे नेगेटिव प्रोडक्शन? जी, या um, इसलिए इस क्वेश्चन में इफ आई वाज अटेम्प्टिंग इट, मैं पहली दफा नहीं बनाऊंगा। आई डेंट वांट टू डिस्टर्ब योर स्केच। हर बार वही करते थे तो मैंने कहा वही करो, लेकिन मैं बाद में बनाऊंगा और टैक्स लगा के दिखाऊंगा, ठीक है? या अब इतना स्मार्ट आप लोग हैं कि आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कब बनाना है कब नहीं। अब मुझे बताएं जी इनडायरेक्ट टैक्सेस के फायदे, व्हाई वुड इट वर्क? कितना लगाओगे पहले? एमईसी के बराबर लगाओगे, जिससे हम क्या हो जाएंगे? क्लोजर टू ऑप्टिमम। ठीक है, ये हमेशा बताएं, क्लोजर टू ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। फिर जी प्राइस बढ़ेगी, फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे पुअर कंज्यूमर्स, हाँ बोले बोले। हाँ, पुअर के लिए नॉन अफोर्डेबल स्पेशली अल्कोहल जैसी महंगी डीमेरिट गुड, ऑन द कर्व डिमांड कम हो जाएगी। यस जी। अब जी गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? जिसको वो कॉम्पनसेटिंग गुड्स लाइक मेरिट गुड्स बना सकते हैं या अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकते हैं। जी मेरा बेटा,
और क्या फायदा एक और करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस वाज मेनली टारगेटेड। और क्या फायदा होगा? हम्म, क्या होगी? वो तो हमने कर ली है, कॉस्ट ज्यादा, प्राइस ज्यादा, सप्लाई कम, वो तो हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस से और क्या फायदा होगा? अरे नहीं मेरे बेटे, उससे तो कॉस्ट पुश होती है। ग्रीनर businesses will, yes, greener businesses will be encouraged, and these businesses might shift to greener technology. Ab limitations, why will it not work? हाय शाबाश, एमईसी हार्ड टू एस्टैब्लिश। जरा सुन ले, एमईसी की कोई मार्केट प्राइस नहीं है। कोई बता सकता है लाहौर में स्मॉग की कितनी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू? बहुत मुश्किल काम है, गेस्टिमेट है, इनएक्यूरेट होगा। ओवर टैक्स लग जाएगा या अंडर टैक्स, या तो मार्केट फेलियर दूर नहीं होगा या ब्लैक मार्केट्स बन जाएंगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होएगी। और क्या मसला होएगा? फर्म्स डिस्करेज होएंगी, रिग्रेसिव इन नेचर है, इनकम गैप्स बढ़ेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है इनडायरेक्ट टैक्स से। हमने जरा इनडायरेक्ट टैक्स को ज्यादा मौका दिया जी मेरा बेटा। इनइलास्टिक डिमांड, सॉरी, इवन लार्ज फर्म्स अगर कोई पोल्यूशन क्रिएट करें, उनकी डिमांड्स बहुत इनइलास्टिक होती है, डीमेरिट गुड्स की स्पेशली। वेरी गुड, दिस इज इनफ एनालिसिस। अब हमारे पास और कौन सी पॉलिसीज हैं? पोल्यूशन परमिट्स कर लो, फाइन्स एंड पेनल्टीज कर दो, जो दिल करता है, अवेयरनेस कैंपेन कर दो। एक दो पॉलिसीज और करके कंक्लूड करो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस शॉर्ट रन में इफेक्ट लाते हैं, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन और पोल्यूशन परमिट मोर परमानेंट सॉल्यूशंस हैं। स्टिल टोटल मार्केट फेलियर दूर नहीं हो सकता, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कम की जा सकती है। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? जी मेरा बेटा। हाँ कर दें, कोई हर्ज नहीं। जी मेरा बेटा, लेट्स लुक एट द मार्क स्कीम। मुझे लगता है वो ग्राफ तभी मांगेगा, शुरू में नहीं मांगेगा। आप लोग तसल्ली से सोच के, market failure regarding the question would relate to allocative inefficiency. Market failure can be explained by defining allocative efficiency and linking this to requirement of how to allocate resources to maximize consumer satisfaction. This can be supported by a diagram illustrating a level of output where MC is equal to price या AR, which is consistent with an outcome that achieves allocative efficiency. Negative externalities occur when consumption production of a good produces a cost to society which is greater than incurred by individual consumer production producer. This is sometimes described as negative spillover effect. Try and take words from Marx scheme. सोसाइटी की कॉस्ट एमएससी ज्यादा है प्राइवेट कॉस्ट से कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स की। वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सोचो वो इसी मार्क्स स्कीम से चेक कर रहे हैं। जैसे ही मिलता वर्ड आएगा, वो जल्दी में है, उन्होंने पैसे कमाने हैं, वो टिक लगा देंगे। वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन माइट बी द इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। हाँ, यहाँ डायग्राम कह रहा है, a clearly labeled accurate diagram can be used to show the impact of an indirect tax on the level of output and efficiency. उसमें डेड वेट लॉस एफिशिएंसी बता देगा। एनालिसिस वुड यूज दिस टू शो द इम्पैक्ट ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन प्राइवेट कॉस्ट कर्व, वो लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, सोशल कॉस्ट बन जाएगा। फर्दर एनालिसिस शुड देन आइडेंटिफाई द लिंक्स बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड द बिहेवियर ऑफ फर्म। दिस वुड लिंक द क्रिएशन ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज टू द बेनिफिट्स ऑफ रिमूविंग देम। कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कम होगी, मार्केट फेलियर एड्रेस हो जाएगा। लेकिन a government might introduce indirect taxation. However, it's difficult to determine how much external cost की वैल्यू है, कितना टैक्स लगाएं। इश्यू ऑफ मार्केट फेलियर रिमूव करते करते आप अनएम्प्लॉयमेंट कर दोगे, गवर्नमेंट फेलियर आ जाएगा। ये टर्म जरूर लिखिएगा। Also, the impact of indirect taxation and sometimes takes a long time to become effective. Nah, I don't agree with that. लेकिन चलें, some large firms might produce and sell products which have an inelastic demand, जैसे आप लोगों ने बोला, उससे significant impact नहीं आएगा, consumption कम नहीं होगी, production कम ज़्यादा नहीं होगी।
Introduction of indirect taxation might be costly and unnecessarily bureaucratic, as well as being difficult to monitor and enforce. मान लेते हैं. It might be that government intervention based on the use of alternative, more direct approaches such as pollution permits might be more effective. Indirect taxation is regressive and might unfairly penalize low income groups. A conclusion should consider alternatives, compare that with use of indirect taxation, and attempt to form some judgment regarding the effectiveness of this type of policy. जी मेरे बच्चों, इजी पीजी. दूसरा क्वेश्चन भी आसान ही है. Wages in a perfectly competitive labor market will always be higher than the wages in a monopsony labor market. With the help of a diagram हम ज़्यादा बनाएंगे. Evaluate the statement. बच्चों, सेम स्केच. सबसे पहले perfectly competitive labor market क्या होती है? I would start with defining wages. Wage is the reward for labor for providing their service. परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट के 4-5 फीचर्स मुझे जल्दी से बता दें. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स यानी फर्म्स एंड लेबर सेलर्स, दे आर ऑल वेज टेकर, यानी जियोग्राफिकल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, इजी टू एंटर एंड लीव द मार्केट फॉर लेबर. इसके अलावा जी इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट नॉलेज फॉर बोथ लेबर एंड फर्म्स. और इसके अलावा दे आर होमोजीनियस स्किल्स. प्रॉफिट मैक्सिमाइजर MCL इज इक्वल टू MRP पे हायर करेंगे. अब आप मेरे बच्चों ये डायग्राम बगैर सोचे बना दिया करो. लेफ्ट साइड पे इंडस्ट्री परफेक्ट मार्केट. सॉरी, MIC लिख सकते हैं, MCL लिख सकते हैं, फैक्टर इनपुट कॉस्ट लिख सकते हैं, सारी एक्सेप्टेड है. वेजेस लेबर की जगह एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं. ये बन गया जी सप्लाई कर्व ACL MCL. फिर जब हमने MRP लगाया, डिमांड कर्व फॉर लेबर, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है. इस सारे एरिया में प्रॉफिट था क्योंकि MRP इज ग्रेटर देन MCL, और यहाँ पे लॉस है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. तो फर्म्स इस नंबर ऑफ वर्कर्स पे रुक जाएंगी. दिस शुड सफाइस फॉर योर नॉलेज मार्क्स. अब जी, क्या मोनोप्सनी से हमेशा परफेक्ट मार्केट में वेज ज्यादा होती है? इंट्रोड्यूस मोनोप्सनी. क्या होती है जी मोनोप्सनी? One dominant firm that hires labor in a particular area or for a particular skill. They are wage setters. They produce where MCL is equal to MRP. Their supply curve is ACL, but MCL rises faster. अब बेसिक एक्सप्लेनेशन में तो मोनोप्सनी हमेशा परफेक्ट लेबर मार्केट से ज़्यादा लो वेज देगी. हाँ, लो वेज देगी. इसका कंपैरेटिव डायग्राम बनाते हैं जी. ये आ गया MRP, ये हो गया सप्लाई कर्व एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, ये हो गया MCL. अब मोनोप्सनी ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स LM हायर किए. वेज देनी चाहिए थी W स्टार, लेकिन दे रहे हैं सिर्फ सप्लाई पूरी करके वेज मोनोप्सनी. अब अगर ये परफेक्ट मार्केट होती, MCL सप्लाई कर्व होता, MRP डिमांड कर्व होता है वैसे भी, तो इक्विलिब्रियम परफेक्ट मार्केट का ये होता. वेज ज़्यादा होती, मोनोप्सी ने एक्सप्लॉइट किया, और लेबर ज़्यादा हायर होती परफेक्ट मार्केट में. ठीक है, एक्स एंड वाई डेड वेट लॉस आ गया. तो इस एनालिसिस के मुताबिक यस, perfect labor market में wages will always be higher and unemployment will always be lower than monopsony. However, कब ऐसा सीन नहीं होगा? जब कौन इंटरवीन करे? हाँ, जब ट्रेड यूनियंस इंटरवीन करें, या गवर्नमेंट मिनिमम वेज लॉ लगा दे, या गवर्नमेंट
ट्रेनिंग हो जाए, डिमांड कर्व फॉर लेबर राइट पे शिफ्ट हो जाए। अब मेरे बेटे ट्रेड यूनियन और मिनिमम वेज का डायग्राम बनाते हैं और उसको परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करते हैं। वेजेस, लेबर, एम आर पी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट यानी डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई, ए सी एल, एम सी एल, एम सी एल, एम आर पी पे मोनोप्सनी ने वर्कर हायर किए, वेज देनी चाहिए थी डब्ल्यू स्टार, दे रहे हैं सिर्फ सप्लाई पूरी करके, वेज मोनोप्सनी। इतना सारा बार्गेन मार्जिन ट्रेड यूनियंस के पास और गवर्नमेंट के पास मौजूद है। अगर परफेक्ट मार्केट होती, जी मेरा बेटा, हाँ 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 हाँ, इक्विलिब्रियम परफेक्ट मार्केट में ये वेज होती और ये एम्प्लॉयमेंट होती। अब मेरे बच्चों, मोनोप्सनी के खिलाफ ट्रेड यूनियन या गवर्नमेंट मिनिमम वेज या वेज यूनियन उससे भी ऊपर लगवा सकती है। अब सप्लाई कर्व में किंक आ गया और एमसीएल एमआरपी पे इतने वर्कर लेबर यूनियन या वेज मिनिमम पे आ गए तो वेज बढ़ गई। तो इस सिचुएशन में वेज बढ़ सकती है जब गवर्नमेंट मिनिमम वेज लगाए या ट्रेड यूनियन निगोशिएट करे। इसके अलावा अगर ट्रेड यूनियन ट्रेनिंग दिलवा देते हैं वर्कर्स को, उस केस में भी वेज बढ़ जाएगी। या ट्रेड यूनियन सप्लाई कम कर देते हैं, उस केस में भी वेज बढ़ जाएगी। उसके भी डायग्राम्स हैं हमारे पास। सिंपल डिमांड सप्लाई वेज डिफरेंशियल्स, ये डिमांड पहले थी, ये सप्लाई थी, ये वेज थी। आप एक ही बना दो मेरा बेटा, लेकिन बेहतर तो है कि जितने ज्यादा बनाओ उतना अच्छा है। अब ये देखो, एमआरपी बढ़ा, वेज भी ज्यादा, लेबर भी ज्यादा। और कितना आसान सा डायग्राम है, दूसरे में सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट करा दो। यस मेरा बेटा, दोनों, सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करके भी ये वेज बढ़ा सकते हैं और डिमांड बढ़ा के भी वेज बढ़ा सकते हैं। ओके, लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन। इवैल्यूएशन हो गई, हम कैसे करेंगे? एज डिस्कस्ड अबव, अकॉर्डिंग टू बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी, monopsony will always pay lower than the perfect labor market. However, intervention of trade union, if they're powerful bilateral monopsony hai, they can raise wages. And also, if trade unions train their workers, demand curve for monopsony will shift to the right and wages will increase. And also, if they restrict the supply of labor, wages will increase above perfect competition. So the statement is not always true. There are incidences where trade union can raise wages, या government can raise minimum wage above the rate of perfectly competitive labor market. समझ आ गया मेरे बच्चों? सॉरी, हाँ, जिधर भी करें हमने, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट को डिनाई करना है, ऊपर लगाएंगे। वो परफेक्ट कंपटीशन का किया, उसकी भी बात कर सकते हो। और मोनोप्सनी में यही काम कर दो, डिमांड कर्व एमआरपी को राइट पे शिफ्ट करा दो। खुद ही देखो, एमसीएल एमआरपी पे ये वेज बन जाएगी और ये एम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन वो देंगे सप्लाई कर्व के मुताबिक, अनलेस ट्रेड यूनियन बीच में आए। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, दोबारा बोलें, जरा तेज बोलें आप। हाँ, प्रोडक्टिविटी डील्स के बारे में मेंशन करो कि भई हम आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, हमारी वेज बढ़ा दो, उसमें वेज इतनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है। ठीक है? गुड इनफ। यस मेरा बेटा। क्या कह रहे हो? जी, यस।
किसके पास ले गए थे? हर जगह पे लग सकता है, कोई इश्यू नहीं है, हर जगह पे लग सकता है। ये सारा बार्गेन मार्जिन है, राइट? सो इसमें आप तीन चार लगा सकते हैं। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बट यू गेट इट। दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर। आपने मार्केट फेलियर वाला करना है, डोंट बी सिली, डोंट गो फॉर लेबर मार्केट, टेक योर 16 17 20 आउट ऑफ इट। अब इंशाल्लाह कल हम, जी मेरा बेटा। अच्छा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी करते हैं। लेट्स से, जवाद, हमने हमेशा मार्जिनल तेजी से बढ़ते हैं, एवरेजेस सस्टेन बढ़ती हैं। हमेशा मार्जिनल्स तेजी से गिरते हैं, एवरेजेस सस्टेन। एवरेजेस में हाई लो दोनों वैल्यूज होती हैं। समझ आ रही है जवाब? चले, हम यहाँ पे कहते हैं जी लेबर, इधर कहते हैं वेज, फिर एमसीएल, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर, और फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर निकालते हैं। पहला वर्कर हमने हायर किया $10 पे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज $10, total cost of labor is $10, 10 over one worker, average cost of labor is $10। सेकेंड हायर किया $12 पे, मार्जिनल बढ़ के 12 पे चली गई, टोटल 22 पे, 22 डिवाइडेड बाय टू वर्कर्स, एवरेज सिर्फ 11। कुछ नोट कर रहे हो? एवरेज इज ऑलवेज राइज स्लोअर कंपेयर टू marginals। Jawad, are you clear? Okay, you want more examples? I can give you. Depends on their number बेटे, depends on what the economy के हालात are। इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड में उनकी बात मानी जाती है। लेबर इंटेंसिव बिजनेस हो, कैपिटल अच्छा सब्सटीट्यूट ना हो, उनकी बात मानी जाती है। आ, क्या उसको बोलते हैं, फाइनल गुड की डिमांड इन इलास्टिक हो, उनकी बात मानी जाती है, वरना नहीं। फॉलो कर रहे हो? या, सो दैट इज इट जी, आई एम क्लोजिंग द क्लास।